बच्चों वेलकम है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला में। और मैं विक्की सर आज के वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको फिनॉल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने पढ़ाया था अल्कोहल के बारे में। लॉकडाउन चल रहा है, उम्मीद है आप घर पे होंगे, सेफ होंगे और समय का यूज कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है फिनॉल। आइए देखते हैं व्हाट इज फिनॉल। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज नोन एज फिनॉल। बेंजीन सब लेके एच को रिप्लेस करेंगे और एक यहाँ बेंजीन में OH ग्रुप को ऐड कर देंगे, then it is known as hydroxybenzene and called it is known as phenol. This is phenol. The IPC name, the common name and IPC name of hydroxybenzene is phenol. Phenol may be also considered as the IPC name of the molecular formula of benzene is C6H6. When you replace one H and add one hydroxy group, then it is C6H5OH, and this is the molecular formula of phenol. Phenol. It is also known as carbolic acid. It is also known as carbolic acid and was obtained by coal tar. फिनॉल बहुत एक इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ही ज्यादा है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे आगे। व्हाट इज द यूजेस ऑफ फिनॉल इंडस्ट्रियली, इसका बहुत सारा यूज है। हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फॉर एग्जाम्पल substituted benzene ring may be known as ortho. For example, 1 and 2 position, it is known as ortho represented by O and 1-2 position. If the replacement from benzene is at 1 and 3 position, 1, 2 and 3, then 1,3 position is also known as meta position. It is represented by small m. And if the displacement from 1 and 4 position, this is 1, 2, 3 and 4, then it is known as 1,4 position or para position. Clear? 1-2 position is also known as ortho position. 1-2 position, 1-3 is also known as meta, and 1-4 is known as para. For example, this is phenol, and we add one alkyl group, methyl group. Then this is a functional group. We counting start करेंगे यहाँ से, ये 1 ये 2 होगा. Then this is methyl, and the name of this is 2-methyl phenol. It is also known as orthocresol. 1-2 position is also known as ortho position. If methyl group is at 3 position, then it is 1, 2, 3. Then it is 3-methyl phenol, and is also known as metacresol. And if CH3 group is at 4 position, 1, this is 2, this is 3 and 4, then it is 4-methyl phenol, and is also known as para-cresol, represented by P-cresol. Clear? 1-2 position is ortho, 1-3 is meta, and 1-4 is para. When methyl group is 2 position, it is known as 2-methyl phenol and also known as orthocresol. 1-3 position, then 3-methyl phenol, it is also known as metacresol, and 1-4 position, 4-methyl phenol is also known as para-cresol. Clear? बच्चों हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हम लोग किस किस मेथड से फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम फ्लोरोबेंजीन, फ्रॉम फ्लोरोबेंजीन। This method is also known as Daw process.
प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियली क्लोरोबेंजीन, इंडस्ट्रियली फिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोबेंजीन। इंडस्ट्रियली हम लोग क्लोरोबेंजीन को फिनॉल से प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रॉ प्रोसेस। ड्रॉ एक केमिकल कंपनी है यूएसए का जो फर्स्टली यूज किया था दिस मेथड को बनाने के लिए कमर्शियल। फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे 623 केल्विन टेम्परेचर और अबव 300 atm pressure, then the compound obtained is sodium phenoxide. Then the compound obtained is sodium phenoxide, which upon acidification gives reacts with dilute HCl, then we obtain phenol. ठीक है, NaCl यहाँ से बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, हम लोग इस तरह से फिनॉल बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियली फिनॉल बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन का यूज किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। व्हाट इज बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट? बेंजीन रिंग पे अगर क्या हो डाइजेनियम ग्रुप N2 ग्रुप इज कॉल्ड डाइजो and N2Cl, N2 plus Cl minus, this is called benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride को हम लोग इसको वाटर के साथ हम लोग इसको वार्म करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं हम लोग इसको वाटर के साथ हम लोग हीट करेंगे या वार्म करेंगे, वार्मिंग विद वाटर। देन क्या होगा, ये दिस रिएक्शन इज नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें OH ग्रुप जो होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप ये N2Cl को कंप्लीटली इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस बाय OH, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट ये N2 और एक वाटर का HCl प्लस Cl माइनस, तो बाय प्रोडक्ट N2 और HCl ये बाहर निकल जाएगा। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हम लोग वाटर के साथ हीट करते हैं तो हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, इसको हम लोग एनिलीन प्रिपेयर कर सकते हैं। कन्वर्जन बहुत ज्यादा यूज होता है, हम लोग एनिलीन फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के साथ अगर NH2 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन या एनिलाइन। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl और टेम्परेचर होगा यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। दिस रिएक्शन इज इन आइस पाथ, टेम्परेचर आइस 10 से 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन और इसको हम लोग फिर डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा और इसको फिर वाटर के साथ हीट कर लेंगे तो फिनॉल बना सकते हैं। तो अगर कन्वर्जन दे एनिलीन टू फिनॉल, हाउ वुड यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल? देन वी फर्स्टली रिएक्ट विद डाइजेनियम सॉल्ट, रिएक्ट विद NaNO2 और HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, देन वी ऑब्टेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड एंड देन व्हेन हीटेड विद वाटर देन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। ये हो गया दो मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन और फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं देखेंगे हम लोग फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर अगर SO3H ग्रुप होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एंड दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, हम लोग करेंगे तो हम लोग ये ऑप्शन बनेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। इसको बन जाएगा हम लोग ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड और इसको हम लोग फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं, विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल। ये इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे SO3H, इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ये वन स्टेप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे NaOH यहाँ पे, और सेकंड स्टेप यहाँ पे देंगे हम लोग देंगे H+ और डायरेक्ट हम लोग लिखा सकते हैं यहाँ पे फिनॉल। ये कन्वर्जन हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट दिखाने के लिए। सेकंड मेथड, थर्ड मेथड हम लोग देखते हैं फ्रॉम क्यूमीन। व्हाट इज क्यूमीन?
isopropyl benzene is known as cumene. Example, this is benzene ring. हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3, this is CH3 and H. This is known as isopropyl benzene and this is also known as cumene. हम लोग क्यूमेन से आसानी से बना सकते हैं फिनॉल. क्यूमेन ऑन ऑक्सीडेशन ये एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है पेरोक्साइड ऑफ क्यूमेन. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑफ क्यूमेन इज ऑब्टेन्ड. यहाँ पे O2 ग्रुप ऐड हो जाएगा. दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑफ और क्यूमेन और which on acidification gives phenol. यहाँ से ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन ग्रुप बाहर आ जाएगा. ये फिनॉल बेंजीन के साथ OH होगा, यहाँ बचेगा, ये बन जाएगा फिनॉल. यहाँ पे OH ग्रुप और बाय प्रोडक्ट ये CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये CH3 एसीटोन बन जाएगा. तो इस तरह से हम लोग देखा 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन. पहला मेथड देखा हमने क्लोरोबेंजीन से डॉ प्रोसेस. सेकंड मेथड देखा हमने बेंजीन डाइजेनेम सॉल्ट से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल में. सेकंड मेथड देखा हम लोग फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फोर्थ मेथड हम लोग देखे हैं फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन क्या हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करता है तो पेरोक्साइड फॉर्म करता है, उसको फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं तो वो फिनॉल बनता है. इसमें 4 मेथड. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. इससे पहले हम एक देखते हैं कन्वर्जन. यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है इससे हम लोग कन्वर्जन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कन्वर्ट करने थे कि बेंजीन टू फिनॉल, फ्रॉम बेंजीन टू फिनॉल. फॉर एग्जाम्पल ये कन्वर्जन है, ये बेंजीन टू फिनॉल. हाउ वुड यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनॉल? बेंजीन को हम लोग अगर क्लोरिनेशन कराते हैं इसको Cl2 से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 then we obtain क्लोरोबेंजीन. ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन. और क्लोरोबेंजीन को हम लोग इससे पहले हमने पढ़ाया था डॉ प्रोसेस. इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे और सेकेंड स्टेप इसको एसिडिफिकेशन कराएंगे हाइड्रोलिसिस और टेम्परेचर होगा 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 क्या होगा ATM ये प्रेशर. तो क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं फिनॉल. तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन को पहले रेट कराएंगे CO2 के साथ बनेगा क्लोरोबेंजीन और फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बाय ड्रॉ प्रोसेस इनटू फिनॉल. दिस इज फिनॉल. इसमें और एक कन्वर्जन पूछता है, हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन. अगर फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना हो, फिनॉल इनटू बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड. फिनॉल को हम लोग अगर जिंक मेटल के साथ हीट करते हैं, जिंक मेटल या जिंक डस्ट के साथ इसको हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेंगे इसको फिनॉल को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में. यहाँ से बन जाएगा बेंजीन और बाय प्रोडक्ट बन जाएगा ZnO. तो हम लोग बेंजीन से कन्वर्ट करना हो फिनॉल तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे फिनॉल में और फिनॉल को कन्वर्ट करना हो बेंजीन में तो 1 स्टेप में होगा. इसको जिंक मेटल के साथ हीट कर लेंगे फिर बन जाएगा ये बेंजीन. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. वीडियो मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए और लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठाइए. ओके बाय.